Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing well. I am Sanila ma'am. I am going to teach you computers. Okay? And today we are going to start a new lesson, lesson 3, applications of computers. Okay? First of all of you take out your book, take out page number 17, lesson 3, applications of computer. Okay? And also keep a pencil with you so that whenever ma'am asks you to underline a word, you can underline that word at once. Okay? Now, let's get started. Okay? So, in this chapter, we are going to learn about applications of a computer. Applications means हम किस तरह से कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकते हैं और किन किन जगहों पर यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं. राइट, वी आर गोइंग टू स्टडी इन हाउ मेनी वेज वी कैन यूज़ कंप्यूटर्स एंड एट वेयर एंड at which places we can use. Okay, so now the first place where we use computer is at home. Right, when we get bored at home, we can play games, listen to music, watch cartoons or movies etc. on a computer. Okay, so सबसे पहला प्लेस आपको बताया है at home, है ना. घर पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं. So at home basically we use computers as a entertainment. Right, we when we get bored, we have completed all our household works or our homeworks or everything. Now we are getting bored, so how can we use computers at home? We use computers as an entertainment, like we play games, we play music, we watch videos, cartoons, है ना. We can draw or paint, है ना. In this way we use computers at home. Right, घर पे जब हम बोर हो रहे हो, हमारे सारे काम हो चुके हो, हमारे होमवर्क्स हो चुके हो और हम बोर हो रहे हैं, तो what we can do. Right, now in this condition, like this corona situation, we are not allowed to step out. We have to stay home and stay healthy, stay safe. So इस टाइम में हम क्या कर सकते हैं? बोर हो रहे हैं, बाहर तो जा नहीं सकते, पार्क में खेल नहीं सकते. So we can use computer to play games. Right, we can play games, we can draw, है ना. हम draw कर सकते हैं, pictures बना सकते हैं, games खेल सकते हैं, music play कर सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, कार्टून्स देख सकते हैं. राइट, सो ये सब चीज़ें हम घर पे कर सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से. राइट, नाउ द सेकेंड प्लेस इज इन स्कूल्स. राइट, computer helps the student in their studies. It also helps in teaching various subjects like maths and science. It is used in schools to store students' record. Right, कंप्यूटर को हम स्कूल में कैसे यूज़ कर सकते हैं बेटा? Anyone know? Right? For studies, right? In school, we can use computer for study purpose. है ना, students use computer for their study purpose. Also, teachers can use computer to teach them. Right? क्या होता है स्कूल में जब आप आओगे अभी रीओपन होने के बाद, अभी तो आप लोग लैब गए नहीं हो, है ना. When your school reopens, that time I'll take you to the lab. At lab, you can use computers for your study purpose, like for doing practicals. Right? And in the same way, teachers can use computers to teach you various subjects like maths, EVS, Hindi, English and many more. Right? एंड इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं स्कूल में? स्कूल में वी कैन यूज़ कंप्यूटर टू कीप रिकॉर्ड्स, है ना. स्टूडेंट्स के हो, टीचर्स के हो, किसी की भी रिकॉर्ड्स रखने के लिए भी हम कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, द स्कूल कंप्यूटर मस्ट बी हैविंग योर रिकॉर्ड्स लाइक योर नेम, योर फादर्स नेम, योर मदर्स नेम, which class you are studying, which section you are studying, how old are you, है ना, आपने कब एडमिशन लिया, है ना, आपने टीसी लिया तो वो डिटेल्स, एवरी डिटेल्स वी कैन स्टोर इन आवर स्कूल कंप्यूटर्स. राइट, नाउ द नेक्स्ट प्लेस वेयर वी यूज कंप्यूटर इज इन बैंक्स. है ना, कंप्यूटर ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बैंक्स. इट इज़ यूज्ड इन बैंक्स टू कीप रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट्स एंड रिसिप्ट्स. राइट, पेमेंट्स और रिसिप्ट्स को स्टोर करने के लिए हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं बैंक में. राइट, बैंक में क्या होता है, कस्टमर आया, कस्टमर ने अकाउंट खोला, है ना, उन्होंने उनकी सैलरी स्लिप, उनकी पेमेंट डिटेल्स, एवरी डिटेल्स कैन बी स्टोर्ड इन दैट कंप्यूटर. राइट, वन कस्टमर ओपन हिज अकाउंट इन बैंक. ओके, फ्रॉम दैट टाइम till the account expires, till that his details
can be maintained in that computer, right? His salary details, his transaction details, his deposit details, his name, address, mobile number, everything related to his account and his payment and his receipts, everything can be stored in a computer in banks. Okay. Now the next place where we use computer is in markets, right? So computer is used in stores to list the names of items and their prices. It is also used to prepare bills. So computers को हम मार्केट में कैसे यूज कर सकते हैं? ओके, नाउ फॉर एग्जांपल आप लोग सुपरमार्केट गए होंगे, राइट? आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो पेरेंट्स के साथ सुपरमार्केट जाते हो, लाइक डी मार्ट, बिग बाजार और एनी काइंड ऑफ लाइक मॉल काइंड ऑफ प्लेसेस, राइट? वहाँ पे आप लोग देखते होंगे शॉपकीपर जो है आप लोगों को ऐसे लंबे लंबे बिल्स प्रिंट आउट करके देते हैं, राइट? कैसे होता है? क्या आपके जाते ही तुरंत वो प्रिंट आउट करके मिल जाता है? नो. So what he does is shopkeeper fills each and every detail about the items you have purchased, right? शॉपकीपर क्या करता है, जैसे ही आप अपने परचेज्ड आइटम्स को लेके काउंटर पे जाते हो, शॉपकीपर टाइप्स एवरीथिंग लाइक द आइटम नेम, आइटम प्राइस, आइटम्स क्वांटिटी, एवरीथिंग ही टाइप्स और फीड्स इनटू द कंप्यूटर एंड देन कंप्यूटर मेक्स अ लिस्ट एंड आफ्टर दैट ही यूज अ प्रिंटर टू प्रिंट आउट द बिल एंड ही गिव्स इट टू यू. After that, watching your bill, there down below there is mentioned the total payable amount and then you pay the amount, right? ऐसा होता है. तो ये सब चीज़ों के लिए हम कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, राइट? हमने जो आइटम्स खरीदे उसका नाम, उसका प्राइस, उसकी क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें वो कंप्यूटर में फीड करते हैं शॉपकीपर. उसके बाद वो प्रिंटर यूज़ करके हमको एक पेपर, लंबा सा पेपर प्रिंट आउट करके देते हैं जिसको हम बिल कहते हैं और उसमें सबसे नीचे प्राइस मेंशन रहता है कि आपको टोटल कितना पे करना है, राइट? सो दिस इज हाउ अ शॉपकीपर यूज कंप्यूटर्स इन मार्केट, राइट? नाउ द नेक्स्ट प्लेस वेयर वी यूज कंप्यूटर इज एट ऑफिसेस, है ना? एट ऑफिसेस कंप्यूटर इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन एंड अकाउंट्स. इट इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रिपेयर लेटर्स एंड रिपोर्ट्स, राइट? At office what we do, we use computers to keep information and accounts of a employee or one of a customer, है ना? And also to type letters and reports. So जैसे कि मैंने आपको बताया, in school we use computer to keep your records, है ना? स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स हो, मैम के रिकॉर्ड्स हो, लाइक मैम कहाँ से आ रही, मैम का नाम क्या है, मैम का एड्रेस, मैम किस क्लास में पढ़ाती हैं, मैम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती है ना? मैम स्कूल में एक एम्प्लॉय है, राइट? उसी तरह से ऑफिस में जो एम्प्लॉय है उनके डिटेल्स भी हम कंप्यूटर में रख सकते हैं कि वो एम्प्लॉय ने कब ज्वाइन किया, नाम क्या है, एड्रेस क्या है, किस पोजीशन पे जॉब कर रहा है ना? एवरीथिंग, व्हाट इज हिज सैलरी, एवरीथिंग, है ना? वी कैन स्टोर इन दैट कंप्यूटर in office, right? And then also we can prepare letters and reports, है ना? We can type letters. We use pen and pencil for to write a letter on a paper, right? But we can use computers also, है ना? Computers में भी आप letter type कर सकते हो using your keyboard, right? And also you can prepare reports or presentations. Okay? Now the next place where we use computer is in hospitals. Doctors and nurses also use computer in hospitals. Computer can be used to diagnose the disease with the help of some other medical equipments, right? Doctors और nurses भी computer को use कर सकते हैं, है ना? वो use करते हैं, but they use some medical equipments together with the computer, right? वो सिर्फ कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो कंप्यूटर के साथ में कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स को भी यूज़ करते हैं ताकि वो किसी बीमारी को, किसी डिजीज़ को डायग्नोस कर सकें. डिजीज़ मीन्स बीमारी, राइट? उसको डायग्नोस कर सकें. डायग्नोस मीन्स टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ एन डिसीज बाय एग्जामिनिंग द सिम्टम्स ऑफ अ पेशेंट, राइट? सपोज एक पेशेंट है, उसकी तबीयत खराब है, वो डॉक्टर के पास गया, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है कि एग्जामाइन हिज सिम्टम्स, राइट? कि उन्हें क्या क्या हो रहा है, उन्हें क्या क्या तकलीफ हो रही है. सो डॉक्टर क्या करते हैं, पूछते हैं, है ना, कि आपको बुखार है, आपको हेडेक हो रहा है, आपको स्टमक पेन हो रहा है ना? सब पूछते हैं वो, है ना? तो ये सब जो चीज़ें हैं उसको हम सिम्टम्स कहते हैं, राइट? और उस सिम्टम्स को वो एग्जामाइन करते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद में वो बताते हैं कि इस पेशेंट को ये बीमारी है, राइट? सो टू आइडेंटिफाई अ डिजीज, by examining the symptoms is called
dialogues. Okay, the process is called dialogues. Now, next place where we use computer is at railway stations and airports. Computer is used for booking tickets at railway stations and airline offices. All the information regarding the trains or flights is available on the computers, right? रेलवे स्टेशन पे और एयरपोर्ट्स में हम कंप्यूटर कैसे यूज़ कर सकते हैं? वी यूज़ कंप्यूटर्स इन रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स फॉर बुकिंग टिकट्स, राइट? आप लोगों ने देखा होगा रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में लंबे लंबे से काउंटर्स बने रहते हैं और ऐसे कार्ड से बंद रहते हैं और उस काउंटर के उस तरफ एम्प्लॉयज़ रहते हैं, राइट? और इस तरफ हम लोग लाइन में ऐसे खड़े रहते हैं, राइट? और क्या होता है, वो एम्प्लॉय के पास हम जा करके कहते हैं कि हमें वी वांट टू गो टू इंदौर और वी वांट टू गो टू भोपाल, सो गेट अस अ टिकट, है ना? देन ही checks the detail of the train, है ना? Which day, what time the train will depart and all that. Is there any availability of seats? अगर नहीं है तो वो बोल देंगे सीट्स अवेलेबल नहीं है, राइट? ये सारे डिटेल्स भी कंप्यूटर में अवेलेबल होते हैं, तभी वो देख करके हमें टिकट दे पाते हैं, राइट? अगर हमने सपोज उनसे बोला हमें कल जाना है और कल सीट अवेलेबिलिटी नहीं है, तो क्या वो दे पाएंगे? हम क्या खड़े रह कर जाएंगे ट्रेन में? नहीं, वी वांट प्रॉपर सीट, राइट? So to know about that availabilities and the train timings, we put all those details related to a train or a flight in that computer, right? So this is the way we use computers in railway stations and airports. Okay. Now, besides these computers are also used in communication, in industries, in the military department, in science and space research, etc. अब इन सब के अलावा भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे हम कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, राइट? सो वो कौन कौन सी जगह है, राइट? वी यूज़ कंप्यूटर्स इन कम्युनिकेशन ऑल्सो, है ना? कम्युनिकेशन के लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर? अभी आप लोगों ने सबसे पहले देखा होगा, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस जब चल रही थी हमारी, आप लोग ऑनलाइन मैम को फेस टू फेस देख के बात करके पढ़ रहे थे, राइट? सो कंप्यूटर और लैपटॉप यूज़ करके हम कर सकते थे, है ना? सो कंप्यूटर्स में वेब कैम होते हैं, कैमरास होते हैं, उसके थ्रू हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, वॉइस कॉलिंग भी कर सकते हैं, राइट? हम ईमेल्स भेज सकते हैं, लेटर्स भेज सकते हैं, इसके लिए भी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, राइट? इसके अलावा इन इंडस्ट्रीज, सपोज एक इंडस्ट्री है, वहाँ पे कैंडीज़ बनाए जाते हैं, है ना? अब उस कैंडीज़ के हम लोग सारे डिटेल्स कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं, है ना? फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी कैंडीज are manufactured, how many products are used to manufacture that candies, है ना? How many cartons we use to pack those candies, है ना? How many employees were there to make, है ना? All these details we can feed in a computer in industry, right? And then military department. Military department में क्या होता है? Military department, you know, our soldiers, है ना? Soldiers can use कंप्यूटर टू डिटेक्ट अ बॉम्ब, है ना? आप लोग देखते हो मिलिट्री और आर्मी वाले कहीं भी जैसे हमारे सिटीज़ में बॉम्ब वगैरह है पता चलता है, तो वो इक्विपमेंट्स पूरा लेकर आते हैं और बॉम्ब को डिटेक्ट करते हैं कि कहाँ छुपाया हुआ है, तो इन सब के लिए हमें कंप्यूटर की यूज़ कर सकते हैं, राइट? देन इन साइंस एंड स्पेस रिसर्च, राइट? साइंस एंड स्पेस रिसर्च से आपको क्या समझ में आता है? हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो लोग भी कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, लाइक वो वेदर फोरकास्ट, है ना? हमें न्यूज़ में पहले पता चल जाता है लाइक कि आज बारिश होने वाली है, आज इतनी धूप रहेगी, आज का टेम्परेचर इतना है, तो ये सब डिटेक्ट करने के लिए भी हम कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, राइट? साइंटिस्ट ये सब यूज़ करते हैं, साइंटिस्ट हर तरह के रिसर्च के लिए कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, राइट? नाउ देयर इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट गिवन बिलो. डू यू नो इन अर्लियर टाइम्स देयर वर नो कंप्यूटर्स और कैलकुलेटर्स. People used abacus to add or subtract numbers. अच्छा, आप लोग को पता है पहले के टाइम में कंप्यूटर्स नहीं होते थे, है ना? अब तो मोबाइल फ़ोन में, कंप्यूटर में सब जगह कैलकुलेटर्स अवेलेबल है. उसके अलावा कैलकुलेटर एक प्रॉपर डिवाइस भी अवेलेबल है, बट पहले के टाइम में बेटा ये सब कुछ भी नहीं था, राइट? तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे? abacus यूज़ करके, राइट? सो अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे, मैथ्स मैम ने आपको पढ़ाया होगा मैथ्स में, है ना? abacus कैसे यूज़ करते हैं, abacus यूज़ करके कैसे कैलकुलेशंस करते हैं, राइट? सो ये यूज़ करके बहुत पहले जब कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे तब हम लोग abacus यूज़ करके कैलकुलेशंस करते थे, राइट? सो दिस वाज द चैप्टर एंड नाउ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर एंड प्रैक्टिस इट at your home, है ना? You have to read this
at least for 3 times. Okay, and then we'll do the exercise in next class. Okay, good day.